Hello, dearly beloved. Welcome to this morning channeling, if you might call it. I have been receiving this sign of knots since yesterday, and it's been going around. It's like I could not put my finger on it, what exactly it was, but today morning it just came to me while making the last post about knots. It's coming up again and again, and specifically it's a red thread. It's a red thread knot, right? And we all know that the twin flame connection is a red thread of fate, which connects two beings who are separated in their physical essence. Ram Ram ji, Ram Ram Nam ji, who are separated in their physical reality and are connected by this red thread of fate. And I had this red thread lying around, and I just wanted to play around because the answer was there, but it was not coming to me. So I thought, okay, let me just work with this around, and I came to make a knot, and these two threads were separate, and I wanted to make a knot out of it. And what happened was that this got created, this beautiful structure. It's a balanced knot. You can see right here, and this end connecting the feminine to this end, which is the masculine, and this part which is going upwards is source love light. This is the creator that we are connected to. And most of the people make this mistake of thinking that this is simply masculine and feminine connecting to each other, but it is the source of all things that is holding this connection in place, that has bound both of you together, and that is what helps us stay on the path, to stay on this twin flame path, to recognize and realize that we are bound through divine, not by our own physical desires, not by our own 3D materialistic needs and tendencies to be with our twin flame. It is something that is already predestined. And if you notice closely, when I turn the knot around, it is heavier on one side. So this is the feminine side, or you can call it, this is the side of the awakened twin flame. It might be masculine also. So this is the side of the twin flame that is awakened, and here it seems very light, but it's actually empty. Okay, and it is the awakened twin flame who is more connected to source. It's not that your twin flame is not connected to source, but you are the one who is really anchored to God, to God's name, to creator's love, to creator's life, and that is how you are keeping your twin flame in place as well. Your love is keeping your twin flame in place. उनको भटकने से रोकते हैं, उनको पाथ से गिरने में आप उनको बचाते हो. You actually save your twin flame from falling off this path, from falling off this journey. That is why जो awakened twin flame है उसकी responsibility ज़्यादा होती है. Responsibility not in the sense कि आप कुछ कर रहे हो, बट हाँ, आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है. आपका इंटरनल डायलॉग क्या चल रहा है अपने ट्विन फ्लेम से, अपने गॉड से आप क्या बातें कर रहे हैं. तो उन चीज़ों को मायने देना और उन चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेंट रहना बहुत ज़रूरी है इस वक्त स्पेसिफिकली, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही हैं वो हमारे हार्ट चक्रा और हमारे क्राउन चक्रा को अभी दे आर जस्ट ब्लास्टिंग देम ओपन, एंड यहाँ पे एकदम से क्रैक हुआ. सो दिस इज़ एक्चुअली ये जो करंट एनर्जीज़ हैं वो हमें आगे जाके जो हमारे कनेक्शन में जो एक सॉलिडिटी, एक जो फाउंडेशन बनने वाली है इस कलेक्टिव में. पर्टिकुलरली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस कलेक्टिव में हैं, राइट. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि आप सोर्स का नाम साथ में लेके चलें, क्रिएटर का नाम साथ में लेके चलें, बिकॉज यही चीज़ जो है आप को पाथ पे रखेगी और आपके ट्विन फ्लेम को भी आपसे और गॉड से जोड़ के रखेंगी, बिकॉज दिस इज़ अ ब्यूटिफुल नॉट दैट वी शेयर विथ आवर ट्विन फ्लेम. Okay, it's a bond of love, it's a bond of light as well, and it is not two-way, it is three-way. I was so surprised, but I was also not surprised, क्योंकि yes, it makes so much sense. और यहाँ पे देखिए ना, जैसे हुक है और यहाँ पे आप
इस नॉट को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, राइट. सो इट इज़ प्लेस्ड ऑन डिवाइन, ऑन द शोल्डर्स ऑफ डिवाइन. This twin flame dynamic, this twin flame connection is placed on the shoulders of divine. So we need to surrender. We only need to be responsible about our own thoughts and our own emotions, कि हम अपने twin flame के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और क्या वो नेगेटिव जा रहा है या क्या वो पॉजिटिव जा रहा है. ये अवेकन twin flame की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड इट डजेंट मैटर कि आपके ट्विन फ्लेम क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको क्या दिखा रहे हैं. दैट इज़ नॉट शोइंग दैट योर ट्विन फ्लेम इज़ अस्लीप. दे आर एक्चुअली अवेकन्ड. दे आर, जैसे बोलते हैं ना, स्लीपिंग हीलर्स. आपके ट्विन फ्लेम जो हैं वो आपके स्लीपिंग हीलर हैं, वो भी हीलर हैं, बिकॉज उनके आने से ही आपका एक्टिवेशन हुआ, उनके आने से ही आपका इनिशिएशन हुआ स्पिरिचुअल पाथ पे. So they are connected to divine as well, right? And they have caused this activation within you. So in a sense they are your guru. But हम अपने कभी कभार ईगो में आकर, कान बज रहा है, कभी कभार अपने ईगो में आकर हम सोचते हैं कि हम गवर्न कर रहे हैं ये रिलेशनशिप, हम ड्राइव कर रहे हैं. येस, यू आर ड्राइविंग इट थ्रू कॉन्शियस थॉट एंड कॉन्शियस फीलिंग ओनली, राइट. बट your twin flame is your other half that is actually nudging you and tugging you, right. आप जब भटक जाते हो तो आपके twin flame आपको पाथ पे लेकर आते हैं. जब आप भटक जाते हो इस जर्नी से, जब आप कहीं और जाने लगते हो, आपको लगता है ना यार चल कोई बात नहीं, यू नो आई कैन फाइंड अनदर सोलमेट, मे बी दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, ये पता नहीं क्या टर्म है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ, और पता नहीं क्या होने वाला है आगे जाके. सो यू नो लेट मी जस्ट लिव माई लाइफ, लेट मी जस्ट डू माई ओन थिंग. तो आपको वापस कौन खींचता है? आपको वापस ट्विन फ्लेम खींचेगा. आपको वापस यहाँ पे ट्विन फ्लेम लेकर आएगा जगह पे, अलाइनमेंट में, थ्रू डिफरेंट साइंस, थ्रू डिफरेंट सिंक्रोनिसिटीज़. उनका नाम दिखना शुरू हो जाएगा, गाने आने शुरू हो जाएंगे, और अलग अलग टाइप की, मतलब वो आपको हर जगह दिखाई देने लगेंगे, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग लिटरेचर में, होर्डिंग्स में, सब जगह आपको नंबर्स दिखाई देने लगेंगे, विच इज़ अ रिमेम्बरेंस फॉर यू दैट यू आर गोइंग अपार्ट. You are going apart from, not only from your twin flame but also from God's source light and love. ठीक है. तो आपके ट्विन फ्लेम हैं जो आपको सही जगह लेकर आते हैं, जो आपको अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं, राइट. एंड एट द सेम टाइम इट इज़ सो पैराडॉक्सिकल, बट एट द सेम टाइम अगर आप केवल गॉड की तरफ ही जा रहे हैं, इट्स लाइक आप गॉड की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्शियसली. तो आप देख रहे हैं कैसे नॉट ऊपर जा रहा है, ये कनेक्शन ऊपर बढ़ता है, ये कनेक्शन ऊपर जा रहा है. मैं कुछ और बोलने वाली थी बट डिवाइन वांट्स मी टू से समथिंग एल्स, कंप्लीटली ऑपोजिट डिवाइन बोल रहे हैं मुझे. इस तरीके से कॉन्शियसनेस काम करती है. हम अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से, मैं कुछ और बोलने वाली थी, मुझे कुछ और फील हो रहा था, बट डिवाइन मुझसे कुछ और कंप्लीटली डिफरेंट कहलवा रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ द ट्रूथ, दैट दिस कनेक्शन मूव्स अपवर्ड. जितना आप सोर्स से कनेक्ट करेंगे उतना जल्दी ये कनेक्शन जो है आपके ट्विन फ्लेम उतना ही स्पीड से असेंड करेंगे, राइट. क्योंकि आप फेथ डाल रहे हैं डिवाइन में. येस, डिवाइन ने मुझे एक कारण से मिलवाया है उनसे, और मैं चाहती हूँ ये यूनियन हो, है ना. बट हम चाहते भी हैं और साथ में हमें विश्वास भी नहीं करना है, तो वो चीज़ फिर काम नहीं कर पाती. तभी हम लूप में रहते हैं, तभी हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, तभी हम हेल्पलेसनेस और पावरलेसनेस फील करते हैं, क्योंकि हम कनेक्शन से हट जाते हैं, हम अलाइनमेंट से हट जाते हैं, हम डिवाइन के शरण से हट जाते हैं, राइट. तो हमें डिवाइन की शरण में ही रहना है, और तभी हम ऊपर असेंड करते हैं, और तभी हम ट्विन फ्लेम को भी ऊपर खींच के लाते हैं, लिटरली, यू नो. और हम भटकते हैं तो वो हमें जगह पे लाते हैं, राइट. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बॉन्ड एंड आई एम जस्ट ब्लोन अवे. एंड मैं लाइव पे आने से पहले मैं 2 मिनट बैठी हूँ कि मैं बोलूँगी क्या. मैंने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट ये आना चाह रहा है अभी इस वक्त. एंड पर्टिकुलरली इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ये आपके लिए है मैसेज. एंड यू आर असेंडिंग लाइक एनीथिंग राइट नाउ, ओके. आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है. एंड ये थ्रेड का मटेरियल भी आप देखिए सेम है. आप पता नहीं लगा सकते हैं कि ये 2 थ्रेड्स अलग अलग हैं. दे आर मेड फ्रॉम द सेम फैब्रिक,
They are made from the same material, they are made from the same blueprint, your twin flame and you are made from the same soul fabric of life, राइट. तभी आप दोनों इतने कनेक्टेड हैं. उनके मन में जो चल रहा है आपको पता लग रहा है, आपकी फीलिंग्स जो है वो उनको भी पता लग रही हैं. भले हम इग्नोर कर दें, भले हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में आगे बढ़ जाएं, यू नो, वी कीप फोकस टू आवरसेल्व्स. वी मे चूज़ टू पे अटेंशन टू इट और वी मे चूज़ टू इग्नोर इट. अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो हम अगेन, यू नो, इट्स लाइक बीइंग मूविंग अवे फ्रॉम दिस डिवाइन कनेक्शन. और फिर गॉड खींच के लाएंगे, बेटे जान कहाँ जा रहे हो आपकी जगह यहाँ पे है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग अक्रॉस. एंड येस्टरडे बहुत कुछ एक वियर्ड सी चीज़ हुई, छोटी सी चीज़ है बट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैंने एक्सपीरियंस किया कि कल के लाइव में, पर्टिकुलरली लेट नाइट लाइव थी, तो आई वॉज चैनलिंग सम थिंग्स एंड मुझे ऐसा लग रहा था मैं फिज़िकली प्रेजेंट हूँ बट मैं कहीं और हूँ, और मुझे एक चीज़ की परमिशन चाहिए एंड वो चीज़ करने की मुझे परमिशन नहीं दी जा रही थी. बट फिर भी मैं वो लाइव करती गई और मेरी एनर्जी बहुत सिकुड़ती सी गई, आवाज़ श्रिंक हो गई, मैं बोल नहीं पा रही थी ज़्यादा. और मुझे बस ऐसा मन में अंदर लग रहा था ना कि लाइव ख़त्म करो, नहीं करना. बट एक दूसरा पार्ट था माइंड में जो मैंने कहा नहीं, आई हैव टेकन दिस अप, आई हैव स्टार्टेड दिस लाइफ, सो लेट मी जस्ट कंप्लीट इट. बट कल रात से मैंने ये लर्निंग ली है कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू आर नॉट अलाउड नाउ. देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट. एंड ये कार्ड आया था इस लाइफ में आने से पहले, मैंने एक कार्ड निकाला था जिसमें फर्स्ट वर्ड है इनोसेंस. तो आपका सोल का जो इनोसेंस है, आप अपने इनोसेंस में आ रहे हो और आपको अपनी इनोसेंस में रहने के लिए कहा जा रहा है. Okay, so if you are the awakened twin flame watching this, definitely you are the awakened one if you're watching this. So you are being asked to keep yourself pure, to stay in that zone of childlike innocence. ठीक है, which is also meaning you need to be in touch with your inner child and your essence of purity, right? So certain activities that you have been probably exploring in the past, and this is more of a connection to sacral chakra. ठीक है, तो आपसे आपकी एनर्जी रिटेन करने के लिए अभी कहा जा रहा है, बिकॉज वो चीज़ कहीं और लगेगी, वो एनर्जीज अभी कहीं और रिक्वायर्ड हैं. माई गुडनेस, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दिस. आपकी वो एनर्जीज अभी कहीं और यूटिलाइज्ड हैं. तभी आपसे कहा जा रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट यू स्टे इन योर इनोसेंस ऑफ नेचर, स्टे इन योर प्योरिटी ऑफ बीइंग. आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, आपसे चीज़ें बुलवा रहे हैं, आपको गुस्सा दिला रहे हैं, राइट. बट आप अपनी इनोसेंस में रहिए. छोटे बच्चे जैसे गुस्सा आया, ताड़ फाड़ करके बोल दिया और फिर अगले मोमेंट आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए, आपकी उनसे वापस से दोस्ती हो गई, वापस से फ्रेंडशिप हो गई. तो छोटा बच्चा जैसा होता है वो अपने मन में कोई ग्रज नहीं रखता, अपने मन में कोई रंजिश, कोई साजिश नहीं रखता. अ चाइल्ड इज़ वेरी वेरी प्योर, दैट इज़ वाई दे आर सो क्लोज टू डिवाइन. क्योंकि उनकी जो एनर्जीज होती हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत प्योर होती हैं, वो उसी मोमेंट तक रहती हैं और उस फीलिंग को वो इस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट से लेकर वो फ्यूचर मोमेंट में नहीं जाने देते. दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड फीलिंग. एडल्ट्स हैव इमोशंस. इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, इमोशन, एनर्जी इन मोशन. और एज एडल्ट्स वी हैव बीन टॉट टू सप्रेस आर इमोशंस, टू नॉट लेट इट गो थ्रू आर ओन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड नॉर्म्स एंड ऑपरेशंस. वी हैव नॉट अलाउड आर फीलिंग्स. बच्चे की फीलिंग्स होती हैं, छोटे बच्चों की फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि वो मोमेंटरी होती हैं. अभी है, अगले पल नहीं है, अगले पल कुछ और है. एंड वो फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस. उसको रोना आएगा तो जी खोल के रोएगा और फिर अगले मोमेंट चुप हो जाएगा. उसी तरीके से वो दोस्ती करेगा, प्यार करेगा, खेलेगा तो खुल के खेलेगा, राइट. इट इज़ वेरी प्योरिटी, द प्योरिटी ऑफ फीलिंग इज़ वेरी वेरी एफर्वेसेंट. मतलब एक मोमेंट है, दूसरे मोमेंट नहीं है. तभी बच्चों की फीलिंग्स होती हैं, बड़ों के इमोशंस होते हैं, राइट. सो व्हेन वी आर कमिंग बैक टू आवर ओन essence of being, we start getting in touch with our feelings again. We allow our feelings.
तो आपसे कहा जा रहा है अपनी फीलिंग्स को अलाउ करें, मोमेंटरीली जो आपको फील हो रहा है आप उसे एक्सप्रेस कर दें विदाउट होल्डिंग एनी सेल्फ जजमेंट, विदाउट सेल्फ सैबोटाजिंग योर सेल्फ, एंड सी वेयर द एनर्जी टेक्स यू। ठीक है, और उसके साथ में आपको फॉरगिवनेस अपने लिए और अगलों के लिए रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी रंजिश, कोई भी होल्डिंग बैक अगर आप कर रहे हैं तो उस फीलिंग को आप सप्रेस कर रहे हैं अगेन, विच वी डोंट वांट, एंड दैट सप्रेस्ड फीलिंग टर्न्स इनटू इमोशन विच इज़ वेरी डेंस, विच इज़ वेरी हैवी, which houses in our body and which also starts affecting our health. It starts blocking our chakras. That is the prime cause of chakra blockage. Not many people know this, but आपके chakras में जहाँ जहाँ भी blocks हैं, it is because of stuck energy, it is because of stuck feeling. क्योंकि आपने उस फीलिंग को अलाउ नहीं किया, और जितने लंबे समय तक आप अपनी फीलिंग्स को डिनाई करेंगे, दबाएंगे, कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे, वो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी उस चक्र में, और वो स्पिन करना तो छोड़ो, वो इस तरीके से ब्लॉक हो जाता है कि इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इनटू समथिंग वेरी 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 हैवी. It literally starts manifesting into a health problem that is actually incurable, you know. But डिवाइन कहते हैं कि सब कुछ रिवर्स करा जा सकता है, एवरीथिंग इज़ रिवर्सिबल. योर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मैकेनिज्म, योर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीनरी दैट कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ itself. It heals itself. Your body is more intelligent than you are. Your body is more intelligent than your own brain, because each cell has an intelligence of its own. If you have observed a cell, one cell in your body, you will notice that it has a functioning of its own. उसको सब पता है उसको कब क्या करना है, और वो इंटेलिजेंस, वो DNA एनकोडिंग उसके पास ऑलरेडी है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस. नेचर में आपको इंटेलिजेंस हर जगह देखने मिलेगी, राइट. एंड योर फीलिंग्स आर योर सीक्रेट गाइड्स. तभी कहते हैं कि आपकी फीलिंग्स जो हैं हमें गाइड करती हैं. आवर फीलिंग्स आर आवर ओन ग्रेटेस्ट गाइड्स एंड टीचर्स. तो अपनी फीलिंग्स को अलाउ करें, स्टे इन योर इनोसेंट नेचर. प्लीज़ नो दैट दिस कनेक्शन हियर इज़ फॉर यू टू असेंड टू सोर्स डिवाइन लाइट, राइट. और कभी कभार हमें बुरा भी लगता है, हम कोसते भी हैं डिवाइन को. प्रॉबली आप कोस रहे हैं और आपके ट्विन भी कोस रहे हैं, लाइक मूविंग अवे फ्रॉम डिवाइन, कि आपने क्यों किया हमें, आपने क्यों मिलाया हमें, जब आपने हमें यूनियन नहीं देना था तो आपने क्यों मिलाया, ये आप हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, राइट. वाई दिस, वाई नाउ, इतना टाइम क्यों लग रहा है, राइट. तो आप देख रहे हैं कॉर्ड में किस तरीके से टेंशन डेवलप हो गई है, और वो प्रेशर खाली आप पे नहीं पड़ रहा है, आपके ट्विन पे भी पड़ रहा है. जब आप अपने फेथ से हट रहे हैं, जब आप अपने फेथ से दूर जा रहे हैं, और सोर्स पे देखिए कितना पूरा प्रभाव सोर्स पे है. तो जो पेन आप फील कर रहे हैं सोर्स भी फील कर रहे हैं आपके थ्रू, राइट. सो व्हेन वी लूजन द ग्रिप, व्हेन वी स्टार्ट बिकमिंग ईजी ऑफ दिस कनेक्शन, किस बढ़िया तरीके से डैंगल कर रहा है, आप रिलैक्सड हैं, आपके ट्विन भी रिलैक्सड हैं. सोर्स इज ऑल्सो नोइंग दैट यू नो ओके, ये जो मेरा बंदा है ये मुझ पे फेथ रख रहा है, ट्रस्ट रख रहा है, यू नो दैट दिस कनेक्शन हियर इज फॉर अ रीजन. एंड इट स्टार्ट्स मूविंग एफर्टलेसली. जैसे विंड आई अपने आप बढ़िया से झूलने लगा, तो यू स्टार्ट बिकमिंग ईजी विद द मोशंस ऑफ लाइफ, यू नो. एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री सेट, प्री डेस्टिन्ड. हम अपने ईगो में आके ऐसा सोचते हैं ना कि भाई आई विल मैनिफेस्ट यूनियन. Union is already yours. Divine intended it to be that way. Bhai, it is divine will for you to reunite with your twin flame, to come into union with your twin flame. It was already predestined by God. ये गॉड की मर्जी है, तभी तो आप मिले, तभी तो आप आज यहाँ पे हो, ये लाइव देख रहे हो. तभी आपने पूरी जर्नी अपनी कवर करी हीलिंग की, और आगे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी जर्नी कवर कर रहे हैं, राइट. सो हैव ट्रस्ट इन डिवाइन, हैव फेथ कि उनका जो प्लान है वो हमारे प्लान से बहुत बड़ा है, बहुत ही प्यारा है. जिस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं हम सोच भी नहीं सकते थे. अपनी लिमिटेड सोच शक्ति से हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. हियर आर सम स्टार्स, फाइंड आउट व्हाट्स इनसाइड. अभी मैसेज है तो आपके सोर्स जो है, सोर्स इज सेंडिंग यू लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टुडे, स्टार्स, राइट.
Source is sending you lots of hope, lots of inspiration that this connection here is for a beautiful divine reason. इतना बड़ा रीज़न है, आपको अभी अपने पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि हाँ एक मैस्कुलिन है एक फेमिनिन है, हम साथ में आएंगे, यूनियन में आ जाएंगे और फिर इस वर्ल्ड में अपनी लव और लाइट से वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवरसेल्व्स एंड एक्सपैंड द कॉन्शियसनेस ऑफ this entire world as well. But there is something even greater I'm getting right now. Divine is saying कि वो भी लिमिटेड है, उससे भी ज़्यादा बढ़ के कुछ और होना है, राइट जो कि हम अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड से, और ये किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा ये भी हमें नहीं पता, ये डिवाइन को पता है, right? So trust that inner intelligence, trust source intelligence, trust that what God has in store for you is something so huge, so phenomenal that it is going to blow your mind away. It's going to blow your twins mind away as well, right? And there is a lot of love that I'm sensing right now in the energies. जितना हम अपने twin को love और forgiveness और understanding देंगे उतना वो ascend करेंगे, क्योंकि I cannot give something to the twin, I can only give it to myself, right? तो जब हम ट्विन को अंडरस्टैंडिंग लव और फॉरगिवनेस दे रहे हैं, हम एक्चुअली अपने आप को वो सब चीज़ें दे रहे हैं, और जब आप अपने आप को फॉरगिव करते हो तो आपका ट्विन भी ऑटोमेटिकली हील करता है, दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग देमसेल्व्स फॉर हू दे आर, राइट? तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल चैनलिंग दैट केम अक्रॉस. I have no words right now, so I will just quietly end this live, and thank you so much for joining, all of you lovely lioness, divine vibes, Rudransh, Wildflower, thank you so much for joining this live. Gaurav ji, beautiful messages coming across, very very powerful. I hope you have a phenomenal day ahead. I love you so much. Har Har Mahadev.